لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی حضور کی سیرت کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاص طور پر جس معاشرے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی وہاں کے لیے آپ آئیڈیل بن گئے تھے۔ فائنلی وہ شخص یہی ڈیسیزن لیتا ہے مائیکل ہارٹ کہ ہمیں پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے تاکہ میرے ریسرچ پر، میری تحقیق پر تاریخ میں کوئی الزام نہ لگا سکے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ آپ کشمیر دیکھ لیجئے، بھارت میں صرف کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، اور وہاں جو اسلام پھیلا کسی راجہ اور بادشاہ کی وجہ سے نہیں، جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا گیا، اسلام کے قافلے کو روکا گیا، دوبارہ مسلمانوں نے وہاں اپنی پہنچ بنائی ہے۔ سب سے زیادہ تیزی سے جو پھیلنے والا مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اسپین دنیا کا وہ ملک ہے جہاں تقریباً 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما اور صدر اجلاس حضرت مولانا ڈاکٹر عزیر اختر قاسمی صاحب، مفتی انصار قاسمی صاحب، سامنے بیٹھے ڈاکٹر یامین انصاری صاحب، جناب مشہور سیاستداں اور بہار کے پولیٹیکل لیڈر حافظ انصار صاحب، جناب ظہیر الحسن شفیق صاحب، اور جتنے حضرات ہیں، آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ سب اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ اور سب سے زیادہ مبارکباد کے حقدار ہیں ڈاکٹر شہاب الدین ثاقب قاسمی صاحب، جنہوں نے ایک نئی شروعات کی ہے، ایک اچھی پہل کی ہے، وہ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے یہاں کے لوگوں پر، محلہ والوں پر، کہ انہوں نے وہ جوش نہیں دکھایا، وہ جذبہ نہیں دکھایا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت کا موقع ہے، اور اصلاح معاشرہ سیرت النبی کے عنوان سے ایک جلسہ رکھا گیا ہے، لیکن وہ لوگ غائب ہیں۔ یہاں جتنے افراد موجود ہیں ان میں زیادہ تر ڈاکٹر صاحب کے ذاتی تعلقات والے ہیں، پرسنل انویٹیشن پر آئے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو جو دلچسپی دکھانی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، بڑا المیہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں، شہروں میں ربیع الاول کے موقع پر باضابطہ پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس قوم کے بانی آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، ان کی شخصیت کو جاننا، ان کے بارے میں گفتگو کرنا، اس پر مذاکرہ کرنا، اس حوالے سے دوسروں تک میسج کو پہنچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جب بات انٹلیکچوئل کے بیچ میں ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ہمیں غیروں کو حضور کی سیرت بتانی چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی حضور کی سیرت کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا جاننا ضروری ہے کہ حضور کون ہے، حضور کی شخصیت کیا تھی، حضور کی سیرت کیا تھی، اور ہمیں کیسے روزمرہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، انہیں آئیڈیل بنانا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، سب انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ الگ خصوصیت عطا فرمائی، سب کو ایک الگ الگ معجزہ عطا فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے اندر تمام اوصاف رکھے گئے، آپ کے اندر تمام کمالات رکھے گئے، اور آپ کے بعد آگے کوئی نبی نہیں آئے گا تاکہ پوری دنیا کے لیے آپ کی شخصیت مشعل راہ رہے۔ تو اگر آپ تجارت کرتے ہیں، آپ سیاست کرتے ہیں، آپ دکان چلاتے ہیں، آپ صحافت کرتے ہیں، آپ کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہیں، ہر جگہ ضروری ہے کہ ہم حضور کے نقش قدم پر چلیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ پوری دنیا کے لیے، خاص طور پر جس معاشرے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی وہاں کے لیے آپ آئیڈیل بن گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی مکہ کے معاشرہ نے
कुफ़ार मक्का ने आपको सादिक तस्लीम कर लिया था, आपको अमीन तस्लीम कर लिया था। जब उनकी कोई आपस में लड़ाई होती थी तो सालिसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल में हर तरह के समाजी और इलाकाई औसाफ मौजूद थे। और इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम औसाफ रखे कि जब वो नबूवत का दावा करे तो इनकार न करे। ये अलग बात है कि कुफ़ार मक्का ने उसके बावजूद इनकार किया कि ये हमारे माबूदों के खिलाफ दावत दे रहे हैं, हमारे बुतों के खिलाफ जाकर एक अल्लाह की वहदानियत का दर्स दे रहे हैं, इसलिए हम इनकी दावत पर लब्बैक नहीं कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे सब ने इस्लाम कबूल किया और मक्का की वादियों से जो इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ वो मदीना पहुंचा, मदीना से पूरे अरब के इलाके में पहुंचा, फिर शाम ईरान की वादियां होते हुए हिंदुस्तान पहुंचा, पूरी दुनिया में पहुंच गया। और इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो फैलने वाला मज़हब है वो इस्लाम है। दुनिया के जिस गोशे में चले जाइए, जिस चप्पे में चले जाइए, वहाँ इस्लाम मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाई मौजूद है, उनका उम्मती मौजूद है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें तज़किर आया स्पेन के शहर बार्सिलोना का। स्पेन दुनिया का वो मुल्क है जहाँ तकरीबन 700 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, और फिर 1492 में वो दौर आया जब गरनाता का आखिरी इलाका भी मुसलमानों के कब्ज़े से निकल गया, ईसाइयों की हुकूमत हो गई और मुसलमानों को सिर्फ 3 ऑप्शन दिया गया था, या तो ईसाई मज़हब को इख्तियार कर लो, दूसरा ऑप्शन वरना तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, या तीसरा ऑप्शन यह है कि तुम स्पेन को छोड़कर चले जाओ। और इस्लामी तारीख़ में मुसलमानों की हिस्ट्री में उंदुलुस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। डॉक्टर अजमल कासमी साहब यहाँ मौजूद हैं। जब ये रिसर्च पर लेक्चर देते होंगे, तहक़ीक़ बताते होंगे, तो जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर गुजरे हैं, साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनका ताल्लुक़ उंदुलुस से रहा है। और ये उस दौर की बात है जब पूरा यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था, जहालत में डूबा हुआ था। उन्हें कपड़ा पहनने का शऊर नहीं था, टेक्नोलॉजी का ज़र्रा बराबर उनके पास इल्म नहीं था, उन्होंने तहज़ीब का नाम नहीं सुना था। उस दौर में यूरोप के उंदुलुस में मुसलमानों का उरूज था और पूरी दुनिया तक उनका फैज़ पहुंच रहा था। उस उंदुलुस से मुसलमानों को निकाल दिया गया। अगर कोई मुसलमान वहाँ बचा था तो सिर्फ अपने घर के अंदर मुसलमान था, घर के बाहर उसको अपने गले में सलीब लटकाकर जाना पड़ता था, ये शो करना पड़ता था कि वो मुसलमान है। और आज उसी उंदुलुस में दोबारा इस्लाम के नाम लेने वाले हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि जब यूरोप के मुल्कों में फ़लस्तीन की हिमायत का जज्बा बढ़ रहा है और इन दिनों आलमी सुमूद फ्लोटीला गज़ा की तरफ एक कारवां की शक्ल में रवाना हो रहा है, जो तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज माना जा रहा है, तो इस कारवां का आगाज़ होता है बार्सिलोना की बंदरगाह से, वहाँ के पोर्ट से। हज़ारों की तादाद में स्पेन के रहने वाले, यूरोप के दूसरे मुल्कों में रहने वाले क्रिश्चियन, मुसलमान और तमाम मज़ाहिब के फ़लस्तीन का परचम लेकर आते हैं और वो गज़ा की तरफ जाने वाले काफ़िले का खैर मक़दम करते हैं, उनको अलविदा कहते हैं। तो मैं कह ये रहा था कि जहाँ जहाँ भी मुसलमानों को सताया गया, इस्लाम के काफ़िले को रोका गया, दोबारा मुसलमानों ने वहाँ अपनी पहुँच बनाई है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले दुनिया के हर कोने और हर गोशे में मौजूद हैं। बहुत मशहूर राइटर गुजरा है जिसका नाम है माइकल हार्ट। उसने किताब लिखा था और कहा, और उस किताब में उसने दुनिया की 100 ऐसी शख्सियात को जमा किया जिसने दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस कायम किया, जिसने दुनिया पर असर कायम किया, जिसको दुनिया हमेशा याद रखेगी। और जब 100 लोगों की उसने लिस्ट तैयार की तो वो तज़ब्ज़ुब का शिकार था कि पहले नंबर पर किसे रखा जाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो ईसाई था और वो पहले नंबर पर हज़रत ईसा को रखना चाह रहा था। फिर उसको ये भी ख्याल आ रहा था कि अगर मैंने हज़रत ईसा को रखा, मोहम्मद को ना रखा, तो अगर मेरी किताब पर रिसर्च होगा, मेरे कामों का जायज़ा लिया जाएगा, दोनों शख्सियत का जायज़ा लिया जाएगा, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि मैंने बददियानती से काम लिया, मैंने इंसाफ से काम नहीं लिया। और अगर मैं
पहले नंबर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखता हूँ, तो फिर मेरी कौम, मेरी कम्युनिटी मेरे बारे में ये कहेगी कि तुमने अपने प्रोफेट को, अपने नबी को दूसरे नंबर पर रखा और जो हमारा नबी नहीं उसे तुमने पहले नंबर पर रखा। वो सोचता है, मशवरा करता है, टाइम लेता है और फाइनली वो शख्स यही डिसीजन लेता है माइकल हार्ट कि हमें पहले नंबर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखना है, ताकि मेरे रिसर्च पर, मेरी तहकीक पर तारीख़ में कोई इल्ज़ाम न लगा सके। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत अजीम है। जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस्लाम को पूरी दुनिया तक फैलाएं। हम बड़े फ़ख्र के साथ इस बात को हमेशा कहते हैं कि इस्लाम हुस्न अखलाक से फैला है। इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से फैला है। इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है। वो इलाका भी पूरा का पूरा मुसलमान बन चुका है जहाँ कोई फ़ौज दाखिल नहीं हुई। भारत के समंदर में मालदीव नाम का एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी कुल आबादी 5 लाख की है और 800 सालों से वहाँ मुसलमान मौजूद हैं और उस मुल्क में कभी भी कोई इस्लामी फ़ौज नहीं आई। पूरा मुल्क मुसलमान है और सऊदी अरब के बाद दुनिया का वो दूसरा मुल्क है जहाँ 100% मुसलमानों की आबादी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ जो ताजिर पहुँचे थे उन्होंने अपने अखलाक से इस्लाम को फैलाया था। मलेशिया पूरा का पूरा इस्लामी खित्ता है और वहाँ कोई भी इस्लामी फ़ौज कभी नहीं पहुँची। इंडोनेशिया पूरा का पूरा इस्लामी खित्ता है और वहाँ कभी भी कोई फ़ौज नहीं पहुँची। दिल्ली और आसपास के इलाकों के बारे में आप कह सकते हैं, दिल्ली, मुरादाबाद और इसी तरह इलाका है, यहाँ मुग़ल फ़ौजें थी, यहाँ मुख्तलिफ़ हुक्मरानों ने हुकूमत की। लेकिन अब बिहार के किशनगंज में चले जाइए, वहाँ कभी कोई फ़ौज नहीं गई और पूरा सीमांचल मुसलमानों का खित्ता है। आप बांग्लादेश के इलाकों में, वेस्ट बंगाल के इलाकों में जाइए, वहाँ पहले इस्लाम आया, पहले मुसलमान बने, उसके बाद उनमें से कोई नवाब बनता है, किसी ने हुकूमत की है। आप कश्मीर देख लीजिए, भारत में सिर्फ कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और वहाँ जो इस्लाम फैला किसी राजा और बादशाह की वजह से नहीं, बल्कि पहले इस्लाम आया बुजुर्गों के ज़रिए और फिर बाद में वहाँ बादशाहों ने दौरा किया, कश्मीर की खूबसूरती को सजाया, संवारा और उस पर हुकूमत की। तो इस्लाम दुनिया में फैला है हुस्न अखलाक से, अपनी तालीमात से। इस्लाम की तालीमात में खूबियाँ हैं और आज भी जो लगातार मुसलमानों की छवि बिगाड़ी जाती है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, देश का मीडिया दिन रात मुसलमानों की जो छवि ख़राब करता है, वो इसीलिए आरएसएस को अंदाज़ा है, हिंदुत्व ग्रुप को अंदाज़ा है और जो लोग मीडिया को पूरी फीड देते हैं उनको पता है कि अगर इस्लाम की तालीमात देश के दलितों तक पहुंच गई, ओबीसी समाज तक पहुंच गई, पिछड़े तबकात तक पहुंच गई, तो वो लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, हमारी तादाद घटती रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस्लाम के हवाले से नफ़रत पैदा करो, मुसलमानों के हवाले से नफ़रत पैदा करो। दिन रात ऐसी फिल्में बनाओ जिसमें इस्लाम के अक़ीदे का मजाक उड़ाया जाए, इस्लाम की तालीमात का मजाक उड़ाया जाए और उनके जहनों में एक इमेज पैदा कर दो कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, मुसलमान दूसरों के साथ बदतमीजी करते हैं, मुसलमान किसी का एहतराम नहीं करते हैं, मुसलमान औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं ताकि कोई इस्लाम में दाखिल ना हो सके। तो ये उनका सोचा समझा एजेंडा है, उनका प्रोपेगेंडा है और हमें इसे काउंटर करना होगा, हमें इसका जवाब देना होगा और इसके जवाब देने का तरीक़ा यही है कि हम इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हों। अगर आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो यकीनन किसी न किसी नन मुस्लिम से आपका राब्ता होगा, आपका वास्ता पड़ता होगा, उससे आपके ताल्लुकात होते होंगे और अगर उसके साथ मामलात करते हुए आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप बददियानती से काम नहीं लेते हैं, आप इस्लाम के उसूलों पर अमल करते हैं, भले ही बज़ाहिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन वो नुकसान फ़ायदे में ज़्यादा तब्दील होगा, इस्लाम की तालीमात वहाँ तक पहुँचेगी। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए इस्लाम पर अमल करने की, इस्लामी तालीमात को आगे बढ़ाने की। मेरे पास पर्ची आ गई, इसलिए मैं अपनी बात कहीं पर मुकम्मल करूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा इक़बाल का बहुत मशहूर शेर है कि वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौला कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादी सीना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका
मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।